चलो, can we start? Everyone, please sit straight. Everybody, all last benches, please. Okay. सबको good afternoon. Yesterday we started off with the first lecture for what? CA Foundation Revision Law. ठीक है. कल अपन ने शुरू किया था Companies Act 2013. Okay. सबसे पहले कल का रिविजन लेंगे. You tell me the sections and all the questions which I'll ask, and then we will proceed with the second session of today. ठीक है. Number 1, Companies Act 13 में total sections कितने हैं? 470 divided into 29 chapters and what? 7 schedules. Definition of company section number? Section 2 clause 20. What it is? A company incorporated under this act or under any previous company act. ठीक है. उसके बाद section number 1, applicability of the act applies to what? Tell me first. स्टार्टिंग में कंपनी इनकॉर्पोरेटेड, सेकेंड इंश्योरेंस, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी, स्पेशल एक्ट, लास्ट में क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट. ठीक है. आफ्टर दिस फीचर्स ऑफ कंपनी फटाफट बोलेंगे. सबसे पहले सेपरेट लीगल एंटिटी, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, वेरी गुड. परपेचुअल सक्सेशन, कैन सू और कैन बी सूड, ओके. लिमिटेड लाइबिलिटी, कंपनी कैन ओन असेट्स, कॉमन सील, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स. ठीक है. What is the meaning of corporate will? Company is separate, members are separate. ठीक है. Invisible cloth है. What is the meaning of lifting up of corporate will? Meaning पूछा मैंने. Sir, if you are using the company for any illegal purpose, then the person who is behind the curtain will be caught. Or for any fraudulent purpose. 5 pointers थे, 5 case laws थे. Number 1, लवकर सौरभ. Determine the character, case law. Daimler versus Continental Tires. Second, to protect revenue or tax, Dinshaw Manage Pettit. Number 3, to avoid legal obligation, workmen employed in Associated Rubber versus Associated Rubber Industries. Number 4, formation to act as subsidiaries. What is the case law? Case law. Merchandise versus British Transport Commission. And last, company formed for improper conduct. ठीक है. What is the case law name? Guilford Motor Company versus Horn, HORNE. ठीक है. After that we started off with types of companies. ठीक है. Can you please tell me the sections number? बहुत easy है, जल्दी बताएंगे. Non for profit. Section number 8, very good. Small company. 2 clause 85. OPC. 2 clause 62. Private company. 2 clause 68. Public. 2 clause 71. उसके बाद dormant 455. That's an inactive company. ठीक है. Holding subsidiary 2 clause 46 and 2 clause 87. लक्ष्य सेकेंड प्लीज. ओके. Associate company 2 clause 6. क्या कुछ भी बोलने का झुंड में शांत झाले म्हणून सापडलास. काय असोसिएट कंपनी अर्थ काय? Very good. Significant influence. ठीक है. At least 20%. Okay. How will you identify there is a relationship of holding subsidiary? How? Number 1, if it is holding more than 1/2 of the voting power, or second, if it is in a position to control the composition of board of directors. दोनों के बीच में और है. Small company का definition बताएंगे please. First. इकडे बघ. पेड अप शेयर कैपिटल नॉट एक्सीडिंग 4 CR. उसके बाद टर्नओवर नॉट एक्सीडिंग 40 CR. 440 बीच में और है क्या? एंड है. वेरी गुड. उसके बाद 3 कंपनीज बताएंगे जो उसके डेफिनेशन में नहीं आएंगे. नंबर 1, होल्डिंग सब्सिडरी. सेक्शन 8, स्पेशल एक्ट. वेरी गुड. ठीक है. कैन यू प्लीज टेल मी, अगर सेक्शन 8 का कॉन्ट्रावेंशन होता है, व्हाट इज द पनिशमेंट? नंबर पनिशमेंट क्या है? 10 lakhs to 1 CR. ये किसको है? कंपनी. एंड डायरेक्टर्स को कितना है? 25,000 to 25 lakhs. फ्रॉड करते दो 447 अट्रैक्ट होगा. ध्यान देंगे सब लोग प्लीज. रिवाइज एवरी डे जितना हो रहा है. जस्ट डोंट कम हियर एंड सिट. कुछ काम का नाही आहे फिर रिव्हिजन. ठीक आहे. एकदम क्लिअर पॉइंट आय एम टेलिंग. जाऊन फक्त अर्धा तास अभ्यास करा जेवढं झाले तेवढं. ठीक आहे. चलो. इसके बाद मोर आई विल आस्क यू एंड देन वी विल गो अहेड. ओके. कैन यू प्लीज टेल मी वन मोर थिंग. अपन ने कल
तीन प्रकार के लाइबिलिटीज भी किए थे, याद है? लिमिटेड लाइबिलिटी, अनलिमिटेड एंड कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। तीनों में फर्क। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या है? योर लाइबिलिटी इज टिल वेयर अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द थर्ड वन, द गारंटी वन? जितना तुमने गारंटी दिया है वहां तक ही आपका क्या है? लाइबिलिटी है। और लास्ट वाला क्या है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी, विच इज वेरी रेयर। अगर आप फ्रॉड करते हो देन योर लाइबिलिटी कैन बी कन्वर्ट इनटू व्हाट? अनलिमिटेड। ठीक है, पे अटेंशन प्लीज एवरीवन। कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द सेक्शन ऑफ पब्लिक कंपनी? 2 clause 71, very good. What is the section of public financial institution, PFI? चलो everyone, public financial institution, 2 clause 72. Can you please define what is a PFI? Can you please define what is a PFI? दो बॉक्स थे ना उसमें भाई साहब, एक तो गवर्नमेंट का एज इट इज था और सेकंड क्या था? स्पेशल एक्ट से आया है वो, याद है? LIC UT है, ये किया था अपन ने। ओके, इस बार पूछा भी था वो। नेक्स्ट, फॉरेन कंपनी, 2 clause 42, 2 clause 42. Any company incorporated outside India having a place of business in India. फॉरेन कंपनी में सबसे पहले आपको चेक क्या करना है? उसका इनकॉर्पोरेशन कहां पे हुआ है। जस्ट बिकॉज कोई फिरंगी नाम है, इसका ये मतलब नहीं कि वो क्या है? फॉरेन कंपनी। इनकॉर्पोरेशन इज इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट कंपनी सेक्शन नंबर 2 clause 45. How will you define? Sir, in any company more than 50%, 51% is held by CG, SG और partly by both of them. Last एक पॉइंट पूछता हूं। सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी, आगे कंटिन्यू करो, इज ऑलवेज डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी, जो कि लास्ट वाला पॉइंट था। आज का लेक्चर शुरू करते आपको प्लीज ध्यान देना है। और आपका लिस्टेड कंपनी का सेक्शन नंबर 2 clause 52. What's a listed company? Hey, पूरी लक्ष्य देना। क्या लिखा है? वो इंटर को है सब कुछ, इस पर डिफाइन नहीं किया हम लोगों ने। बराबर है, वो डिफाइन नहीं किया है यहाँ पे, इसलिए मैं कल घुसा नहीं उसमें। कालच घुसणार होतो पण राहू दे मतलब। ठीक है, ध्यान देंगे प्लीज एवरीवन। अच्छा, सेक्शन 8 कंपनी का लाइसेंस आपको सीजी देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर आप वो कॉन्ट्रावीन करते हो तो सीजी क्या क्या कर सकता है? तीन चीजें हैं। एक तो आपको अमलगमेंट करेगा विद एनी अदर सेक्शन 8 कंपनी हैविंग सिमिलर ऑब्जेक्ट। सेकेंड, वाइंड अप घर पे। और थर्ड, स्टेटस चेंज कर सकता है वो आपका, मतलब वो किस में लेके आएगा? आपको प्रॉफिट में लेके आएगा। ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड में जो सेक्शन था, सेक्शन 2 clause 68, प्राइवेट कंपनी को फॉर्मेशन करने के लिए मिनिमम कितने चाहिए? 2, मैक्सिमम 200। काउंटिंग में किसको एक्सक्लूड करेंगे? एम्प्लॉइज, एक्स एम्प्लॉइज। पब्लिक कंपनी मिनिमम मेंबर्स 7, मिनिमम डायरेक्टर्स 3। पब्लिक कंपनी एंड्स विद डैश। LTD, लक्ष्य दिया प्लीज। प्लीज कम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ कंपनीज एक्ट। प्लीज कम टू सेकेंड पार्ट ऑफ कंपनीज एक्ट। क्या है वो? पट 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 लक्ष्य दिया, संपायचे आहे। ठीक है एवरीवन, लास्ट बेंचेस ध्यान देंगे। फॉर्मेशन, रजिस्ट्रेशन, इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, ध्यान देंगे। इन द फर्स्ट 5 मिनट्स सबसे पहला सेक्शन जो आता है फॉर्मेशन का, वो एक ही सेक्शन है। सेक्शन नंबर क्या है? वो 3। फिर इनकॉर्पोरेशन का आपको आएगा सेक्शन नंबर क्या है? वो 7, जो थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा। और इन दोनों के बीच में सबसे टॉप में एक सेक्शन आएगा, जो कौन सा आएगा? इट विल बी सेक्शन 2 clause 69, जो किसको डिफाइन करता है? प्रमोटर को। तो अगर आप एक कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, ये डेफिनेशन आपको सबसे पहला करना पड़ेगा। कौन सा? प्रमोटर का। ठीक है, व्हाट, हु इज अ प्रमोटर? बेसिक आंसर क्या है सर? जो कंपनी क्या करता है? इनकॉर्पोरेट करेगा। वेरी सिंपल, जिसके बाद आइडिया होता है। बट एज पर 2 clause 69, 3 पॉइंटर्स है जो अभी के अभी लर्न करो। आपके स्क्रीन के सामने शायद से आपने लर्न भी किया रहेगा वो। सबसे पहले क्या है त्रिशा? प्रमोटर। जिस बंदे का नाम कहां पे मेंशन्ड है
और जिस बंदे को कंपनी ने खुद ही आइडेंटिफाई किया है किसमें, एनुअल रिटर्न में। एनुअल रिटर्न का पॉइंट कल भी आया था, मैं शायद से आपको फॉर्म नंबर भी लिख के दिया था, क्या था वो MGT 7 था, MGT 7। एक बार वापस, वी आर डूइंग द डेफिनेशन ऑफ डैश, किसका कर रहे हैं, प्रमोटर, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 69। सबसे पहला पॉइंटर उसमें क्या आ रहा है, whose name is identified in what, prospectus। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस, शुरू वहां से करेंगे, जस्ट बिकॉज वहां पे दिए आप पढ़ रहे हो, मतलब क्या उसका। सर आप जब आईपीओ निकालते हैं तो कंपनी को एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है, आपको इंटरमीडिएट में सब कुछ है। तो प्रोस्पेक्टस इज अ डॉक्यूमेंट फॉर व्हाट, एडवर्टीजमेंट, जहां पे आपके कंपनी के बारे में सब कुछ रहेगा। तो अगर इस डॉक्यूमेंट में आपका नाम मेंशन एज व्हाट, अ प्रमोटर, देन यू आर अ प्रमोटर, वेरी सिंपल। आपका नाम यहां पे आइडेंटिफाई किया है MGT 7 में एज व्हाट, सर प्रमोटर, देन यू आर अ प्रमोटर। सेकेंड पॉइंट क्या है, सर जिस बंदे का कंट्रोल है ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और लास्ट में, इन अकॉर्डेंस विद डैश, हुज, आदि रखते हो, आदि, ADI, on whose advice, directions, instructions the board of directors is accustomed to act। आपका बात वो सुन रहे हैं, अगर आपका बात वो सुन रहे हैं then you have become a promoter। दूसरी बात, can a professional person be counted under promoter? No, ठीक है, because you are acting in what capacity, professional। आप आगे जाके जब CA बनेंगे, आप आपके फ्रेंड्स के लिए मदद कर रहे हैं टू इनकॉर्पोरेटर कंपनी, तो क्या आप सभी कंपनीज में प्रमोटर हो गए क्या, नहीं सर, बिकॉज आप कैसे काम कर रहे हैं, इन व्हाट कैपेसिटी, सर प्रोफेशनल कैपेसिटी, आप उसमें प्रमोटर्स गिने नहीं जाएंगे। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं आपको वो। नेक्स्ट, ये हो गया आपका सेक्शन 2 क्लॉज क्या, 69। 3 सेक्शंस करने बैक टू बैक, एक हो गया 2 क्लॉज 69, एक क्या है सेक्शन 3, तो बहुत ही बेसिक है। क्या है उसमें, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, कैसे फॉर्म करेंगे सर, बहुत सिंपल है। प्राइवेट कंपनी मिनिमम 2, पब्लिक कंपनी मिनिमम 7, OPC मिनिमम 1, हो गया खत्म सेक्शन, उतना ही है उसमें। नेक्स्ट कौन सा सेक्शन है, सेक्शन नंबर 7, थोड़ा सा ज्यादा है पर इजी है। सेक्शन 7 का टाइटल क्या है, एवरीवन कम ऑन फास्ट, इतना लर्न करा सगैनी प्लीज, यू हैव टू लर्न हियर ओनली। सेक्शन 7 का टाइटल क्या है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ व्हाट, सर फॉर इनकॉर्पोरेशन देयर आर सम स्टेप्स टू बी फॉलोड, कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है सर, सर 2 डॉक्यूमेंट जो एक 5 मिनट में करेंगे अपन, MOA और AOA, साइंड बाय ऑल द डैश व्हाट, सब्सक्राइबर, पहले साइन करेंगे। हु आर द सब्सक्राइबर्स, सो द इनिशियल मेंबर, प्राइवेट में मिनिमम 2 और वो पब्लिक में मिनिमम 7, वो साइन करेंगे इसके ऊपर। अच्छा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स, कुछ बताएंगे इसके बारे में, एक ही लाइन मतलब, लवकर लक्ष्य दे। मेमोरेंडम, it's a document for the outsiders, and articles, very simple I'm telling you in a very simple words, articles is what, document for the members, ठीक है, ये ड्राफ्ट करना पड़ेगा सबसे पहले। सेकेंड स्टेप क्या है इनकॉर्पोरेशन में, सर आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। सर डिक्लेयर कौन करेगा, सबसे पहले कौन है, एनी प्रोफेशनल पर्सन, एडवोकेट, CA, CMA, CS, एंड अ पर्सन नेम्ड इन आर्टिकल्स इज व्हाट, आपका जो भी मैनेजर रहेगा, डायरेक्टर रहेगा, या कौन रहेगा, सेक्रेटरी। ये 2 व्यक्ति डिक्लेयर करेंगे। क्या डिक्लेयर करेंगे मुझे बताएंगे प्लीज, कि हमने जितने भी रिक्वायरमेंट है इस एक्ट के वो क्या किए, कंप्लीट किए। एक बार वापस, सेक्शन 7 शुरू किया अपन ने, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, लवकर सांगा, लवकर, एवरीवन फास्ट, MOA एंड AOA ड्यूली साइंड बाय ऑल द सब्सक्राइबर, ये आपका पहला स्टेप है। सेकेंड डिक्लेरेशन कौन दे रहा है, हु इज गिविंग, सब प्रोफेशनल पर्सन एंड एनी पर्सन नेम्ड एज, जो भी रहेगा तुम्हारा डायरेक्टर, मैनेजर, ये डिक्लेयर क्या करेंगे पेज के ऊपर, हमने कंपनी एक्ट के जितने भी रिक्वायरमेंट है वो सब क्या किए, कंप्लीट किए हैं। अगर आगे जाके ऐसा निकलता है कि ये लोग ने नहीं किया है, तो ये लोग को पहले पकड़ेंगे, क्योंकि इन लोगों ने क्या किया है, खुद डिक्लेयर किए है। थर्ड भी वापस किया है सर, वापस डिक्लेरेशन ही है, बस आदमी अलग है। अभी कौन है सर, सबसे पहले सब्सक्राइबर है, एंड दूसरा कौन है, फर्स्ट डायरेक्टर। एक बार वापस आदित्य लक्ष्य दे, सबसे पहले डिक्लेरेशन कौन दे रहा था, सबसे पहला डिक्लेरेशन पहला वाला, प्रोफेशनल पर्सन एंड मैनेजर। सेकंड डिक्लेरेशन, फर्स्ट डायरेक्टर्स एंड सब्सक्राइबर। सर ये लोग क्या डिक्लेयर कर रहे हैं डायरेक्टर लोग, कि भाई साहब इसके पहले ये कन्विक्ट नहीं थे इन कनेक्शन विद PF और M। व्हाट इज PFM,
प्रमोशन, फॉर्मेशन, मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि वो साफ सुथरा आदमी है। नेक्स्ट, he has not been found dash what guilty of any fraud under this act लास्ट कितने साल में? 5 years में। 5 साल का आपका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? एकदम क्लीन है। 5 साल के पहले यू आर फाउंड गिल्टी, चलेगा क्या? हाँ चलेगा, नो प्रॉब्लम, पर बताना पड़ेगा आपको ये। एंड लास्ट में क्या है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हम दे रहे हैं वो सी और सी है। सी और सी मतलब करेक्ट और कंप्लीटेड, कोई फर्जी डॉक्यूमेंट हमने सबमिट किया नहीं है, सिंपल। नेक्स्ट क्या है, आपको एड्रेस वो क्या देना पड़ेगा? जब तक तुम्हारा रजिस्टर्ड ऑफिस एस्टेब्लिश नहीं होता तब तक कुछ तो दे दो, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। और रजिस्टर्ड ऑफिस इज टू बी इनकॉर्पोरेटेड विद इन 30 days ऑफ व्हाट? इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। कुछ भी करके 30 दिन के अंदर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए। तब तक गिव अस सम एड्रेस फॉर डैश फॉर कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, पर्टिकुलर्स ऑफ एवरी सब्सक्राइबर, केवाईसी। पर्टिकुलर्स ऑफ एवरी डायरेक्टर। डायरेक्टर बनने के लिए सबसे पहले आपके पास क्या चाहिए? दिस समथिंग कॉल्ड एज DIN, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर चाहिए। तो ये सब डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे आपको। उसके बाद हमको डायरेक्टर्स का ये भी चाहिए, क्या? इंटरेस्ट चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरेस्ट? हॉबी नहीं पूछ रहे आपका, क्या पूछ रहे हैं? हाँ, म्हणजे काय क्या? नाही रे, काही पण बडबडायचं का? इफ यू आर डायरेक्टर इन एनी अदर कंपनी, वो आके बताएंगे यहां पे आपका यहां पे कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं है, आपका कोई रिलेटिव काम कर रहा है यहां पे। सो एनी इंटरेस्ट विच माइट अफेक्ट द कंपनी, प्लीज कम एंड टेल अस। ये पूछे डायरेक्टर को। अच्छा, कैन वन डायरेक्टर बी अ डायरेक्टर इन मेनी कंपनीज एट सम वन पॉइंट ऑफ टाइम? यस, इन 20 कंपनीज। तो तुम्हारा इंटरेस्ट विचारणार थे, ध्यान देंगे प्लीज। ये सब होने के बाद आपको क्या मिलेगा? COI, फुल फॉर्म सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। आपको ये अलॉट किया जाएगा क्या? कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, जो कितने डिजिट का होता है? 21 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर। कितना होता है? ठीक है। उसके बाद अगर आपने ये कुछ कांड किया, फॉल्स इंफॉर्मेशन सप्रेस किया, यू विल बी लाइबल फॉर व्हाट? फ्रॉड। 447। लक्ष्य सेकेंड प्लीज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिब्यूनल? NCLT, फुल फॉर्म नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। सर मतलब क्या है उसका? अभी एनीवन? वेरी गुड। ये कंपनीज का सिर्फ कोर्ट है। इंडिया में बहुत सारे कोर्ट है, मैजिस्ट्रेट, सेशंस, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। इवन दिस इज वन कोर्ट। जितने भी कंपनी लॉ के मैटर्स है वो सब कहां पे चलेंगे? लक्ष्य दे, कहां पे चलेंगे? NCLT में। शॉर्ट फॉर्म क्या है उसका? ट्रिब्यूनल। ठीक है। नाउ पे अटेंशन प्लीज। सर यहां पे क्या है वो? वेयर अ कंपनी हैज गॉट इनकॉर्पोरेटेड बाय फर्निशिंग व्हाट? तुमने कंपनी तो इनकॉर्पोरेट किया है, बट कैसे किया है? सर फर्जी डॉक्यूमेंट्स देके। और ये बात अभी किसको पता चला है? सर NCLT को। देखो, सो अगर वो चाहता है वो क्या क्या कर सकता है? सबसे पहले क्या लिखा है? पास सच ऑर्डर्स एज इट मे थिंक फिट। जो उसको सही लगता है वो करेगा। फॉर द रेगुलेशन ऑफ द मैनेजमेंट, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो मैनेज कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि वो उनको बाहर निकालेगा और खुद के आदमी लोग कहां पे डालेगा? वो उनके बोर्ड पे। ये ताकत किसके पास है? NCLT के पास। पे अटेंशन प्लीज। नेक्स्ट, वो ये भी कर सकता है, जो लोग शामिल थे उसमें, उस फ्रॉड में, उनका लाइबिलिटी लोग क्या करेंगे? अनलिमिटेड करेंगे। आपका नाम निकालेंगे वो लोग रजिस्टर ऑफ मेंबर्स से। आपको ऑर्डर पास करेंगे, कौन सा? वाइंडिंग आपका। ये सब पावर किसके पास है? ट्रिब्यूनल के साथ। म्हणजे काय? NCLT। 2 पॉइंट्स है, दोनों के दोनों भारी है। क्या लिखा है? फर्स्ट, एनीवन? सर बिफोर पासिंग एन ऑर्डर, ये सब जगह, दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस इन इंडिया। तुम कितना भी गुनाह करो, कुछ भी करो, सबसे पहले आपका बात सुनेंगे, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, उसके बाद वो ऑर्डर पास करेंगे। बट आई एम मोर कंसर्न्ड अबाउट दिस पॉइंट।
ये वाला पॉइंट आप पढ़ेंगे और मुझे बताएंगे क्या। पहले पढ़ो, पहले पढ़ेंगे आप पॉइंट, कम ऑन फास्ट। बराबर है। ऐसा हो सकता है एनसीएलटी ने आपके खिलाफ ऑर्डर पास कर दिया है वाइंड अप का, आप वाइंड अप का ऑर्डर देख के खुश हो गए, बोले यार चलो बच गए, मुझे उसको पेमेंट करने का था। अब ये लोग क्या बोल रहे हैं कि तेरा कंपनी क्या कर बंद कर, नहीं, आपके जितने भी ऑब्लिगेशंस है आपको वो फुलफिल करने ही पड़ेंगे, उसके बाद आपका कंपनी क्या होगा, वाइंड अप होगा। समझ में आ रहा है क्या, तो भागने का नहीं ऑर्डर लेके, वो काम करने का पूरा। नेक्स्ट, इनकॉर्पोरेशन के लिए एक फॉर्म है आईएनसी 32 ऑल्सो कॉल्ड एज स्पाइस प्लस। अभी स्पाइस प्लस वर्जन चालू है। फुल फॉर्म सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग अ कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। और वापस बताएंगे प्लीज, सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग अ कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। हाफ फॉर्म है, नथिंग रॉकेट साइंस। ओके, चलो पे अटेंशन प्लीज एवरीवन। क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल बहुत ही बेसिक है, 5 प्रकार के कैपिटल है। कितने प्रकार के? 5। सबसे पहले कौन सा आता है? ऑथोराइज कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल, मैक्सिमम कैपिटल। एक नाम है तेला, इसके ऊपर आप जा नहीं सकते। इफ यू वांट टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी, सबसे पहला ये आएगा क्या? ऑथोराइज, कि आरओसी ने आपको कितना ऑथोराइज किया है। एग्जांपल के तौर पे अपन लेते हैं 1 लाख रुपीज, ठीक है, 1 लाख शेयर्स, 1 लाख शेयर आप इश्यू कर सकते हैं। किसको? पब्लिक को। इसमें से आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? इशू करेंगे। कंपल्सरी है कि 1 लाख इशू करेंगे? सर नहीं, 80,000 इशू किया, ठीक है, 80 में से पब्लिक क्या करेगा? सब्सक्राइब करेगा। उसके बाद आप क्या करेंगे? कॉल्ड अप। और फिर पब्लिक क्या करेगा? पेड अप। सांगा लवकर 5 काय आहेत? नॉमिनल, ऑथराइज, मॅक्झिमम, रजिस्टर्ड। एक ही है, मॅक्झिमम लक्षात ठेवा किंवा ऑथराइज लक्षात ठेवा। ऑथराइज में से क्या होगा? इश्यू होगा। लोग क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? और वापस वो क्या करेंगे? मेमोरेंडम में जब क्लॉजेस शुरू करेंगे तो इसमें से एक ही कैपिटल आता है कैपिटल क्लॉज में। कौन सा? ऑथराइज। लक्ष्य दिया प्लीज। नेक्स्ट, ये बेसिक है, ये पूछेंगे नहीं कुछ इसके बारे में। शेयर्स। नाउ टेल मी वन थिंग, शेयर्स के मामले में आर शेयर्स ट्रांसफरेबल इन अ कंपनी? सर यस, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। बोल तो नहीं है, प्लीज प्लीज बोलो तुम्हें। अच्छा, टेल मी वन मोर थिंग, शेयर्स में अभी फिजिकल शेयर्स है या डीमैट शेयर्स है? सर डीमैट। फुल फॉर्म? डीमटेरियलाइजेशन, which are convertible into electronic shares. Now the main point is what? This. सर दो ही प्रकार के कैपिटल है, एक इक्विटी और एक क्या? प्रेफरेंस। सर इक्विटी में क्या मिलता है आपको? वोटिंग राइट्स। प्रेफरेंस में आपको फिक्स डिविडेंड मिलता है। अच्छा, इक्विटी शेयर को वोटिंग राइट तो मिलता है, बट डिविडेंड मिलता है क्या? फिक्स नहीं है, फ्लक्चुएटिंग है। अगर प्रॉफिट बचता है तो आपको पैसा मिलेगा। मोर द रिस्क मोर द रिटर्न, वेरी सिंपल। बट इसमें दो चीजें, क्या दिख रहा है आपको? क्या आपको इंटर में है सब कुछ? अभी नहीं है इतना। यूनिफॉर्म वोटिंग राइट्स का मतलब क्या है, जल्दी बताएंगे? 1 शेयर 1 वोट, 10 शेयर्स 10 वोट्स, 100 शेयर्स 100 वोट। बट डीवीआर का मतलब क्या है? डिफरेंशियल वोटिंग राइट। आपने 10 शेयर्स लिए, आपको 10 वोट नहीं देंगे, कितना वोट देंगे? 8। सर क्यों? पैसा मैंने कितने का दिया है? वाई। वाई? फर्स्ट, if you have given 10 shares money, why are they giving you 8 votes? उसके बाद वेरी गुड। और कुछ? वेरी गुड। प्रॉब्लम यही है कि अगर वो आपको 10 वोट देंगे, उनका कंट्रोल जा रहा है, किनका? कंपनी का। पैसा आ रहा है उनके पास, बट व्हाट इज गोइंग अवे? कंट्रोल इज गोइंग अवे। दैट इज वाई वो क्या करेंगे? आपको कॉम्पेंसेट करेंगे। वो बोलेंगे यार तू पैसा 10 का ही दे, बट मैं तुझे 8 देता हूं वोटिंग राइट, और जो बैलेंस है
वो मैं आपको कहां पे भर के दूंगा? डिविडेंड में. In this way, you are happy when the company is happy. You are happy why? You are getting dividend. And why company is happy? वोटिंग उसके पास है, डाइल्यूशन नहीं हो रहा है वोटिंग का. पे अटेंशन प्लीज. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है लास्ट के. मेमोरेंडम, देन देयर इज अ डॉक्ट्रिन, आर्टिकल्स, डॉक्ट्रिन, फिर खत्म होता है कंपनी एक्ट. ध्यान देंगे. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेनी पीपल गेट कंफ्यूज ओवर हियर. दो तीन चीजें. इट इज द डैश ऑफ द कंपनी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी, सबसे बेस्ट डॉक्यूमेंट है वो, जिसके ऊपर पूरा कंपनी खड़ा है. इट्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर, वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर अ कंपनी. अच्छा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या होता है? इतना क्यों भारी है वो? सर उसमें क्लॉजेस होते हैं. उसमें क्या होते हैं? क्लॉजेस. और सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज कौन सा होता है? ऑब्जेक्ट क्लॉज. कौन सा होता है? ऑब्जेक्ट. इट इज बेस्ड, इट इज द बाउंड्री ऑफ द कंपनी. पे अटेंशन नाउ. अच्छा, और एक बात, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज फॉर द डैश, इज फॉर द व्हाट? आउटसाइडर स्ट्रिक्टली. मतलब वो आपको स्पून फीडिंग नहीं करेंगे कि बच्चा यहां पे और क्या पढ़, मेमोरेंडम नहीं. इट इज पब्लिकली अवेलेबल, आपके वेबसाइट पे रहेगा, आरओसी के पास रहेगा, रजिस्टर्ड ऑफिस पे रहेगा. सो यू कैन रीड द इंफॉर्मेशन विच इज मेंशन्ड इन द एमओए. लक्ष्य दिया प्लीज एवरीवन. कुछ मॉडल फॉर्मेट्स ऑलरेडी बना के रखे. किसके? एमओए के. दोनों के भी बना के रखे, ए बी सी डी ई. ठीक है, आपका कंपनी जिसमें आता है वो आप क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं, नॉट कंपलसरी. अगर आपका कंपनी लिमिटेड बाय व्हाट? शेयर्स है, यू कैन रेफर टू टेबल ए. इफ योर कंपनी इज लिमिटेड बाय व्हाट? गारंटी एंड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, यू कैन रेफर टू टेबल बी एंड सो ऑन. लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग शेयर कैपिटल. अनलिमिटेड कंपनी, लास्ट में क्या है? अनलिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, यू कैन रेफर टू टेबल ई. सिंपल. अभी शुरू होता है आपका क्लॉजेस. सबसे पहला क्लॉज कौन सा है? नेम. सर नेम क्लॉज में क्या लिखेंगे? आपका कौन सा टाइप है? प्राइवेट, पब्लिक या ओपीसी. उसके बाद नेक्स्ट, रजिस्टर्ड ऑफिस. उनको आपका पूरा एड्रेस नहीं चाहिए, सबसे पहले उनको क्या चाहिए? स्टेट चाहिए जहां पे आपका रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है. नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज ओके, आई वॉन्ट यू टू टेल मी व्हाट इज दिस. 6 महीने वाला पॉइंट क्या है? जल्दी, फास्ट. इफ द कंपनी हैड चेंज, असच पकड़ा, आईसीए हेच पकडणार. वही ऐसे दून के निकालेंगे पॉइंट्स. इफ एनी कंपनी हैड चेंज इट्स एक्टिविटीज विच आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन इट्स नेम, इट शैल चेंज इट्स नेम. तुम कुछ एक्टिविटी कर रहे हो बट तुम्हारा नाम और तुम्हारे एक्टिविटीज क्या नहीं हो रहे? को रिलेट नहीं हो रहे. It shall change its name in line with its activities within a period of what? 6 months from the change of activities. जिस दिन तुमने तुम्हारे एक्टिविटी चेंज किए उस दिन से 6 महीने के अंदर आपको आपका नाम क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा. With all the provisions applicable to change of name. खूब है, सीए इंटर को ये बहुत कुछ है, बट आपके दिमाग में ये 6 महीने वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो आपको वो पूछ सकते हैं. एक बार वापस बताएंगे 6 मंथ्स का पॉइंट क्या है जो इस ऑब्जेक्ट क्लॉज में आता है. अगर आपका काम और आपका नाम क्या नहीं हो रहा है? मैच नहीं हो रहा है, तो जिस दिन तुमने तुम्हारा एक्टिविटी चेंज किया था वहां से 6 महीने के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? आपका नाम चेंज करना पड़ेगा. एज सिंपल एज दैट. लाइबिलिटी बहुत सिंपल है, जो भी है 3 प्रकार के हैं, लिमिटेड, अनलिमिटेड एंड लिमिटेड बाय गारंटी. कैपिटल क्लॉज जस्ट सिखाया मैंने आपको. कौन सा नाम डालेंगे आप? 5 में से ऑथोराइज डालेंगे. उसके बाद एसोसिएशन का मतलब क्या? ये इंपॉर्टेंट है, ये नया वाला है. नया मतलब दे हैव टोल्ड कंपल्सरी for every subscriber to purchase what? At least one share and be associated with the company. समझ में आ रहा है? Every subscriber to memorandum shall take at least one share and shall write against the name the number of shares taken by him. As simple as that. ध्यान देंगे प्लीज. Can a minor become a shareholder in a company? अच्छा, by the way, shareholder बनने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? साइन करना पड़ता है कॉन्ट्रैक्ट. कैन अ माइनर बिकम अ शेयर होल्डर? यस और नो? आओ, रुक मैं उसको पूछा. रुक, हाँ बोलिए वो.
आप भी बताएंगे और साइड वाले भी बताएंगे। चलो मर्सिडीज लवकर, फास्ट। हाँ, वेरी गुड, समीक्षा लक्ष दे। ओनली इन केस ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर अ माइनर कैन बिकम अ शेयर होल्डर। द पॉइंट इज वेरी सिंपल, वो खुद ही बेनिफिशियरी है। अगर कुछ पैसा पेंडिंग है देन ही कैन नॉट बिकम अ शेयर होल्डर। इन्फोसिस का एग्जांपल दिया था नारायण मूर्ति जी का, जो ग्रैंडसन को शेयर्स क्या किए थे, 300-400 करोड़ के गिफ्ट किए थे। ही वॉज अ माइनर, बट पूरा पैसा पे किसने किया था? नारायण मूर्ति जी। ठीक है, पे अटेंशन। नेक्स्ट, जैसे ही आप मेमोरेंडम करेंगे उसके साथ आपको यह भी करना पड़ेगा, क्या? डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। सबसे बेसिक इसका मतलब क्या है? अल्ट्रा वायरस का मतलब क्या है सर? बियॉन्ड द पावर। अतः बियॉन्ड द पावर का ही मतलब क्या है सर? आप आपके मेमोरेंडम के बाहर जाके कुछ कर रहे हो, यू आर डूइंग समथिंग बियॉन्ड द मेमोरेंडम, म्हणजे ऑब्जेक्ट क्लॉज। और वो क्या माना जाएगा? वो क्या माना जाएगा? वॉइड माना जाएगा। एक बार वापस, एनी ट्रांजैक्शन, लक्ष्य द्या, शेवट शेवट आहे ते, एनी ट्रांजैक्शन डन बियॉन्ड द मेमोरेंडम इज अल्ट्रा वायरस एंड डैश वॉइड। वॉइड का मतलब क्या था? नलिटी। ट्रांजैक्शन हैज नो पावर एट ऑल। पे अटेंशन। द इंपैक्ट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस इज दैट अ कंपनी कैन नाइदर बी सूड, कोई केस ठोक नहीं सकता उसके ऊपर, या कंपनी भी केस ठोक नहीं सकता, बिकॉज दैट ट्रांजैक्शन इज वॉइड। लक्ष्य दें प्लीज। Since memorandum is a public document, it is open to dash what? Therefore, when one deals with a company, one is always deemed to know about the powers of the company. वो बाद में आके ये बोल नहीं सकता अरे ये तो मुझे पता नहीं था, नहीं, ये डिफेंस अलाउड नहीं है उसको। और इसके ऊपर ही केस हुआ था, कौन सा? कौन सा? एशबरी रेलवे एंड कैरेज वर्सेस व्हाट? रिश। सो दे विल नॉट आस्क यू प्लीज एक्सप्लेन एशबरी, ऐसा नहीं पूछेंगे, बट जहां पे डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस आता है वहां पे आपको एक केस कोट करना पड़ेगा। और एक बात मैंने रेगुलर लेक्चर में भी कहा था, वापस बोल रहा हूं मैं आपको, जब डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस आएगा एक सिंपल सा लाइन साइड में लिखेंगे, क्या? इट ऑलवेज फेवर्स द कंपनी। दो डॉक्ट्रिन है, तीन है एक्चुअली, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। इसके लिए लिखेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस ऑलवेज फेवर्स द कंपनी, ते नेहमी कंपनीच्या बाजूनच बोलणार। वो लिखो कहां पे, तो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस ऑलवेज फेवर्स द कंपनी। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस ऑलवेज फेवर्स द कंपनी। डन? पे अटेंशन प्लीज। कैन यू प्लीज राइट डाउन दिस केस लॉ नेम? पूरा आराम से शांति से लिखो, केस लॉ का नाम लिखो तुम्हारे हाथों से, लिहायचं आहे। मस्त लिहितं, फास्ट सांग की तिला, सांग की लिहायला। चलो फास्ट एवरीवन। देखो आपने, नाउ प्लीज पे अटेंशन। एक क्वेश्चन पूछो, उसका आंसर दो मुझे। अदर अक्षर प्लीज। एन अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शन इज वॉइड, ट्रू फॉल्स? कैन इट बी रैटिफाइड? रैटिफाई का मतलब क्या है? सो कैन बी रैटिफाइड। सगी बाहर जाओ बैग घेऊन, क्या तुम मुंडी हिला रहे हो ऐसा ऐसा करके? हाँ, मग क्या उपयोग हुआ अल्ट्रा वायरस का? हाँ, इतना पढ़ने के बाद? मतलब तुम्हीच विचार करा, तुम्ही जे म्हटलं आता मला, मतलब बाउंड्री के बाहर करने का कुछ और बाद में क्या करने का? रॅटिफाय। मग काय उपयोग हे वाचून सगळं? An ultra virus transaction can never be dash what?
ratified even with the unanimous consent of all the shareholder. ओ भाई इथं लक्ष द्या, हे जाऊ द्या तिकडं. 100 शेयर होल्डर है तुम्हारे पास, 100 के 100 शेयर होल्डर ने बोला कंपनी ने जो गलती किया है कोई बात नहीं, हम अलाउ कर रहे हैं, कोई उपयोग नहीं है. कंपनी एक्ट ने पहले से ही बोल के रखा है, an ultra virus transaction can never be ratified even with the unanimous consent of all the shareholders. आपके सामने लाइन है वो, चला लवकर, महत्वाचा है. मतलब अगर वो अल्ट्रा वायरस होता है वो कभी भी क्या नहीं होगा, हाँ, तो वॉइड ही रहेगा वो. अच्छा, यू टेल मी वन सिंपल पॉइंट यार, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में एन अग्रीमेंट डन विथ अ माइनर बाय अ माइनर, क्या आप उसको रेटिफाई कर सकते हैं क्या? नहीं. अरे बेस अग्रीमेंट ही वॉइड है, यही सीन यहां पे. अभी ये सुनो प्लीज प्लीज, 2 मिनट. सर ये ठीक है, ये आपने बोला अल्ट्रा वायरस कभी भी क्या हो नहीं सकता, रेटिफाई हो नहीं सकता. 100 के 100 शेयर होल्डर्स ने हाँ बोला है, काहीच उपयोग नहीं. देर इज समथिंग ऑल्सो कॉल्ड एज दिस, क्या लिखा है, क्या लिखा है मैंने, इंट्रा वायरस. सर ये क्या है, ये व्हाट इज दिस नाउ? सिंपल, लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था, वापस एग्जांपल देता हूं मैं. प्लीज पे अटेंशन एंड अंडरस्टैंड द एग्जांपल. ओके, इट्स अ वेरी बेसिक एग्जांपल. जस्ट इमेजिन फॉर 2 मिनट्स, ये बाउंड्री है, कौन सा कंपनी का बाउंड्री, मतलब कंपाउंड का बात नहीं कर रहा हूं मैं, ऑब्जेक्ट का बात कर रहा हूं. इसके बाहर आप कुछ भी करेंगे, आप उसको क्या बोलेंगे? सर ये अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शन है एंड दिस विल बी डैश, ये वॉइड ही रहेगा. सर यहां पे 3 डायरेक्टर्स है, ये तीनों डायरेक्टर का बोरिंग पावर है 3 CR. म्हणजे एक एक डायरेक्टर बाहर जाके कंपनी के नाम पे कितना अमाउंट बोरो कर सकता है? 3 कोटी, 111. टोटल बोरोइंग पावर कंपनी का है 10 CR. मतलब कंपनी अगर बैंक से बोरो करता है तो कितना बोरो कर सकता है? 10 करोड़. सर ये तीनों ने जाके बाहर जाके 6 करोड़ बोरो किया. कितना बोरो किया? 6. नाउ लिसन टू दिस लाइन, दिस ट्रांजैक्शन इज अल्ट्रा वायरस द डायरेक्टर बट इंट्रा वायरस द कंपनी. बराबर है? सर उन लोगों ने माती खाया है बट बाउंड्री के अंदर है वो. कुछ समझ में आ रहा है? दिस कैन बी रेटिफाइड, दिस एक्ट कैन बी रेटिफाइड विथ द कंसेंट ऑफ ऑल द शेयर होल्डर्स बिकॉज यू हैव नॉट क्रॉस द बाउंड्री. यहां पे लिखा है, देखो दिखा दो मैं आपको. थर्ड वाला पॉइंट, एन एक्ट विच इज डैश अल्ट्रा वायरस द डायरेक्टर, म्हणजेच काय? सर जो खुद का कैपेसिटी था उससे बाहर तुम गए, बट इंट्रा वायरस द कंपनी, कंपनी के बाउंड्री के तुम अंदर हो. आगे क्या लिखा है? कैन बी बाय द मेंबर्स ऑफ द कंपनी में पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन. बेसिकली काय करा लागले का? जर कळत नसेल, ये डायग्राम ड्रॉ करो वहां पे, वो इंट्रा वायरस के यहाँ पे, ये एक्ट अल्ट्रा वायरस है और वो बाउंड्री के अंदर मतलब इंट्रा वायरस है. पूछ सकते हैं ये क्वेश्चन आपको, ये वाला. They can ask you this question, please. An ultra virus transaction can never be ratified even with the unanimous consent, म्हणजे all consent of all the shareholders, but an intra virus transaction can be ratified with the majority consent of all the shareholders. इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं. डन. चलो नेक्स्ट, सिंपल है बहुत. क्या है ये? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. अच्छा, आप अगर ये सोच रहे सर क्या करने का इसमें, क्लॉज तो नहीं है कुछ, वो पॉइंट्स लिखे, उसके बाद एक केस लो है, कौन सा? रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस तर्कवान, और लास्ट में एक कंसेप्ट पूछते हैं आपको, एक्सेप्शन ऑफ डॉक्ट्रिन. पर एक गोष्ट लक्षात ठेवा, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में एक पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है एंट्रेंचमेंट प्रोविजन. और वो क्या है पता है क्या? ऐसा है कुछ उसमें,
ऐसा मॉडल में लिखा है, सर हमको नहीं पता, फॉरगेट। शर्मा जी ध्यान देंगे। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आर बेसिकली व्हाट, रूल्स फॉर द मेंबर्स, बट सबसे टॉप डॉक्यूमेंट कौन सा है सर, मेमोरेंडम है सर। उसको अगर अल्टर भी करना रहेगा ना तो बहुत तामझाम है, ये ठीक है, ये रूल्स है अपने मेंबर्स के लिए, ठीक है, पे अटेंशन प्लीज। सबसे पहले इसमें क्या रहता है, रेगुलेशन, सर किसके लिए रहता है, मेंबर्स के लिए। सेकेंड, आप रूल्स इसमें क्या करते हो, इंक्लूड करते हो। और फिर 3 4 5 नंबर का पॉइंट पढ़ो, क्या लिखा है, सब में एक ही वर्ड है, क्या, एंट्रेंचमेंट एंट्रेंचमेंट एंट्रेंचमेंट। इसके ऊपर ही क्वेश्चन पूछेंगे। सबसे पहले शुरू यहां से करते हैं, एंट्रेंचमेंट का मतलब क्या है, एनीवन एनीवन। एंट्रेंचमेंट लिखा है वहां पे, क्लियर कर सर, क्या प्रोटेक्शन नहीं, क्या बात करते हैं, टू प्रोटेक्ट समथिंग विच इज ऑफ वैल्यू। अच्छा एक काम करते हैं, आई टेल यू इन माई ओन वर्ड्स, फिर पढ़ेंगे वो क्या लिखा है। एंट्रेंचमेंट, इफ यू ओपन अप द डिक्शनरी यू विल फाइंड दैट कि बाबा एक ऐसा प्रोविजन है कि जिसको आपको प्रोटेक्ट करना है। ये बघा ना, अगर शेयर होल्डर ने कुछ पास कर दिया मेजॉरिटी से, आपको वो शेयर करना ही पड़ेगा, आपको उनका बात मानना ही पड़ेगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ओनर कौन है, तो शेयर होल्डर है। बट कंपनी बोल रहा है नहीं यार, ऐसे कुछ बातें हैं जिसको अपने को क्या करने का है, प्रोटेक्ट करना है। एंट्रेंचमेंट प्रोविजन आप दो एंगल में डाल सकते हैं आपके आर्टिकल्स में। एक, जब आप कंपनी निकाल रहे हैं, जब इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, उसी समय आपने ऐसा कुछ प्रोविजन डाला। फॉर एग्जाम्पल, आता कोको कोला, थम्सअप, ये सब कंपनीज किसके ऊपर चल रहे थे सर, उनके फॉर्मूला के ऊपर। जो पेप्सी का फॉर्मूला है, जो कोक का फॉर्मूला, जो भी उसका फ्लेवर है, जो केमिकल यूज करते हैं वो लोग, पंते तुम्हारा शेयर करना है का, सब शेयरहोल्डर्स बोले काम करते हैं, अभी अपन क्या करते हैं इससे, वो लेते ही है फॉर्मूला, चलो पास करो रेजोल्यूशन, नहीं वो क्या करेंगे, ये प्रोटेक्ट करेंगे। उसके ऊपर तो कंपनी चालू है, मैगी का मसाला, अभी क्या नूडल्स करने में कितना टाइम लगता है, बट मसाला किसको आता नहीं है करने को, तो मसाला क्या करेंगे ये लोग सर, प्रोटेक्ट करेंगे। तो कल आके शेयर होल्डर्स ने झूठ बनाया वहां पे, बोले कि अभी चलो रिजोल्यूशन पास करते हैं और दे दो हमको क्या, वो मैगी का मसाला, तो क्या करेंगे आप। तो एंट्रेंचमेंट प्रोविजन आप डालेंगे आपके आर्टिकल्स में कि भाई इसको हाथ लगाने का नहीं, और बाकी कुछ भी करो। सो एंट्रेंचमेंट प्रोविजन कैन बी एडेड व्हाइल इन कॉर्पोरेशन और ड्यूरिंग द कंपनी, जब कंपनी खोलने के बाद भी डाल सकते हैं आप। समझ में आ रहा है कुछ, लिहायत येतं असं काहीतरी पुस्तकात की बाबा एंट्रेंचमेंट म्हणजे विच इज व्हेरी इंपॉर्टेंट, कि उसको प्रोटेक्ट करना है। मैगी का मसाला लिया वो समझेगा। तो बहुत सारे बच्चों को यही पता नहीं होता कि ये ऐसा शब्द है कहाँ पे, वो बुक में, सुरुवात इतनंच होते। सबसे पहले टू प्रोटेक्ट समथिंग, उसके बाद आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, और लास्ट में आपको आरओसी को इंटीमेट करना पड़ेगा कि ऐसा ऐसा इंटरेस्ट प्रोविजन है। यहां पे क्लियर कर मेंशन भी किया है, देखो फॉर्मेशन के समय या आगे जाके तुमने क्या किया, आर्टिकल्स में अमेंडमेंट किया तुमने कि ये इंसर्ट करो। जैसे ऊपर टेबल से ए बी सी डी ई पता है, सेम इसके भी वही है, एफ जी एच आई जे मॉडल टेबल से ही। सबसे पहला डॉक्ट्रिन कौन सा, क्या है डॉक्ट्रिन का अर्थ क्या है रे, डॉक्ट्रिन का मतलब क्या है, प्रिंसिपल्स। कौन सा क्या तुमने पढ़ा, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस विच ऑलवेज फेवर्स द कंपनी। कुछ भी हो, कोड भी कंपनी का ही साइड लेगा। ये उसका ऑपोजिट है, डॉक्ट्रिन ऑफ व्हाट, इंडोर मैनेजमेंट, इट ऑलवेज फेवर्स द आउटसाइडर्स। ये लिखो कहां पे, तो बाद में कंफ्यूजन में मत रहो। कंपनी ऍक्ट संपवायचा आहे आज, उद्या रायटिंग प्रॅक्टिस करायची आहे। 20 मार्क्स का है कंपनी एक्ट, वापस बोल रहा हूं मैं, इसमें यूनिट्स भी नहीं है। सो व्हेनेवर यू स्टार्ट रिवाइजिंग स्टडिंग योर लॉ, प्लीज पिक अप दिस ओनली फर्स्ट, कॉन्फिडेंस आएगा इससे। बाकी सगळ्यांमध्ये युनिट्स आहेत,
इसके बाद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट उठाते हैं. सो व्हेन यू फिनिश दिस टू, योर मेजर इज ओवर. हाँ चला. डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट ऑलवेज फेवर्स द. इसका मतलब क्या है कि जो कंपनी में चालू है वो बाहर वाले को पता नहीं है, तो कंपनी उसका फायदा उठा नहीं सकता. व्हाट विल द आउटसाइडर टेल? मला काय माहित आत काय चालू आहे, तू पब्लिक केलंच नाही असे. सो इफ इट इज नॉट पब्लिक देन द कोर्ट विल ऑलवेज सपोर्ट द आउटसाइडर्स. बट आपको पढ़ते समय यहां पे और एक डॉक्ट्रिन दिखेगा. डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस काही वेगळं नाही है. डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब यह होता है कि ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो पब्लिक है. ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो पब्लिक है, ये कॉन्फिडेंशियल नहीं है, ये आपको पब्लिक है. हेच कशात लिहिले त्यांनी? सवया ह्यात लिहिले. लक्ष दे, लक्ष दे, पूर्ण ताकदीनं अभ्यास करा, डोकं लावा. ताकदीनं म्हणजे डोकं डोकं. हा आता व्यायाम करशील तिथं. दिमाग का ताकत लगाओ जरा. So everybody has a different perception of studying, right? Everybody, किसका एकदम मॉर्निंग में एकदम जोश होता है, किसका रात में होता है एकदम 2-3 बजे के बाद नहीं पढ़ाई करता हूं मैं, किसका दोपहर में होता है, जिसका दोपहर में उसको तो सल्यूट है मेरा. दोपहर में पढ़ाई करते हैं, दोपहर में जगह होते हैं. तो आपका जो भी टाइम रहेगा आप उस समय ये करो. इट डज नॉट डिपेंड ऑन कितना तुम आवर्स पढ़ाई कर रहे हो. बहुत जन वो करते हैं क्या, ऐसा घड़ी निकालेंगे, यहाँ पे रखेंगे, टाइम रखेंगे, मी आज 7 तास अभ्यास केला काहीच नाही, तिथंच बसलेत. तो फिर स्नैप डालेंगे सबसे पहले, 7 घंटा पढ़ाई किए, एक क्वेश्चन पूछा, बाउंसर खत्म. इट डजेंट मैटर हाउ मेनी आवर्स यू आर सिटिंग. व्हाट मैटर्स इज कितना क्वालिटी तुमने पढ़ाई की है, और तुमको अंदर से आता है कि मी काय केले, व्हाट यू हैव डन, यू नो, अंदर से आता है. तुमने अगर 1-2 पेज भी किया ना, एक एक्ट भी किया ना तुमने, यू नो हाँ किया है मैंने. पूछने दे अभी जो पूछने के ते अभ्यास आहे. दाखवण्यासाठी अभ्यास कुणालाही करू नका. सिंपल बोलतोय मी. घर पे भी मम्मीने चिल्लाया, ए अभ्यासाला बसलीस काय, बसली आहे, मम्मी लगेच पुस्तक उघडणार. तसलं काही करू नका. ती वेळ गेली आपली, झाली आता 11-12 सगळे. सीए फाउंडेशन में तुमको खुद को ही कंपेयर करना पड़ेगा, और तुम ही तुम्हारा कंपटीशन हो. देयर इज नो अदर कंपटीशन, यू आर योर कंपटीशन. एंड सबसे फर्स्ट बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ. पढ़ाई करना है, टाइम पास है टाइम पास, एज सिंपल एज दैट. मिक्स मत करो कुछ. सोशल मीडिया थोड़े दिवस बाहेर ठेवा. हे आधी पण सांगितले, आत्ता पण सांगायला लागलोय. सोशल मीडिया इंटरफियर किया, तुम्हारा अभ्यास बोम होने वाला है पूरा, कुछ नहीं होगा. तुमको ऐसा लगेगा ना कि नहीं सर 5 में देखता हूँ ना सर, ऐसा 2-3 स्क्रॉल मारता हूँ ना, नहीं, वो 2-3 स्क्रॉल से भेजा उड़ जाएगा तुम्हारा. जो फ्लो है ना वो निकल जाएगा. ते करू नका. एवरी डे इज काउंटिंग. टुडे इज वॉट मार्च, काय ते 12 मार्च है आज. एग्जाम कब है? 2 महीना डॉट. टाइम इज देयर, बट यूटिलाइज द टाइम. तुमको 220 लाने का नहीं है, और ऐसा करो भी मत कैलसी लेके बैठो, नहीं मैं बराबर 50x4 लेके आएगा. माती खाना तुम्हें देते. 300-350 का टारगेट रखो. कंपीट विद एवरीवन. इफ यू आर गोइंग इन, गो ऑल. ऐसा नहीं हाँ चल मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, देखते हैं सितंबर भी है, वो दिसंबर भी है, असलं काही नाही, फालतूगिरी करू नका काहीतरी. रागाना अभ्यास करा. एवरीथिंग विल फॉल इनटू पीसेस. मैं बोल रहा हूँ, इफ यू क्लियर योर दिस अटेम्प्ट, योर इंटर विल कम वेरी सून. तुम्हाला स्वतःला कॉन्फिडेंस है, अरे मैं कर सकता कुछ. मागचं काय झालंय, मेरा पढ़ाई नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, सगळं जाऊ दे उड़त. करना है वेरी सिंपल. तुम्हारा कंपटीशन यहाँ पे नहीं है पुणे पीसीएमसी में, गली में कंपटीशन नहीं है, ऑल ओवर इंडिया है. पीपल फ्रॉम दिल्ली, बिहार, यूपी, केरला, पंजाब, एव्हरीवेअर दे स्टडी. बिहारवाली माणसं उठत नाहीत जागेवरनं, बसतात तिथं. दिल्लीवाली माणसं उठत नाहीत खुर्चीतनं, ते खुर्ची मोडते ते यायला. आपण येतो झाडून दुखा लागले मला, उठतो मी आता, चहाला जातो, चला. काय नाही, अभ्यास करा. अभ्यासच आहे, परत सांगायला लागलोय मी, करून दाखवा काहीतरी. डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट ऑलवेज फेवर्स द आउटसाइडर्स. डॉक्ट्रिन में एक केस लॉ है, क्या है वो? रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस तरक्वान. अच्छा बाय द वे, तरक्वान कौन थे इसमें, माहिती है क्या?
तर्कवान कौन है सर? वो लिक्विडेटर, वो लिक्विडेटर है वो तर्कवान। बाय द वे ये इतना बड़ा कंपनी का नाम है, हाइट मतलब ये कंपनी का नाम उस केस लॉ में भी नहीं है। क्या है कंपनी का नाम? कैमरून कोल ब्रुक स्टीम कोल स्वांसी लाफर रेलवे कंपनी। ये कंपनी ने, मैं सिर्फ कंपनी बोलता हूं, ये कंपनी ने लोन उठाया था। किससे लोन उठाया था? वो बैंक से। इनके 2 डायरेक्टर गए थे साइन मारने के लिए। बाद में जब ये कंपनी वाइंड अप हो गया, बैंक वॉज इन अ वेरी गुड पोजीशन कि यार कोई बात नहीं, इसने कॉन्ट्रैक्ट भी मारा है, जितना भी सिक्योरिटी सब अपना ही है। बट बाद में कंपनी पलट गया। कंपनी बोला जो 2 डायरेक्टर आए थे उनके पास पावर ही नहीं है साइन मारने के लिए, तेरे पास जो पेपर है वो यूजलेस पेपर है। बैंक बोलते कि पागल है क्या, वो 2 डायरेक्टर मेरे सामने आके साइन मार के गए, मेरे पास भी पेपर है। तो कंपनी बोलते हैं हमने ऑलरेडी एक अंदर रेजोल्यूशन पास करके रखा है कि ये 2 डायरेक्टर के पास क्या नहीं है, बोरोइंग पावर ही नहीं है, तो तुमने लोन कैसे दिया फिर? तुमको पढ़ने को नहीं आता क्या? तो मुझे एक बताओ रे, ये जो अंदर रेजोल्यूशन पास किया है वो क्या उसको पता है क्या? बैंक वाले को नहीं पता उसको। दैट इज वाई इन दिस डॉक्ट्रिन वो कभी भी आउटसाइडर को क्या करेंगे? सपोर्ट करेंगे। आपका क्वेश्चन ये आना चाहिए सर ये सब कुछ ठीक है, ये कौन है? ये तर्कवान कौन है फिर? अभी वो है लिक्विडेटर। तो जब ये कंपनी डूब गया तो कोर्ट ने किसको भेजा? लिक्विडेटर को। अच्छा, व्हाट इज द वर्क ऑफ लिक्विडेटर? सर वो आएगा और जितने भी असेट्स है वो क्या करेगा सर? बेचेगा। अभी वो जो रॉयल ब्रिटिश बैंक था वो इसके पीछे लगा, किसके पीछे? वो तर्कवान के पीछे कि यू आर द लिक्विडेटर, नाउ यू आर सपोज टू गिव अस द मनी, वी विल बी स्टैंडिंग इन द लाइन ऑफ क्रेडिटर्स नाउ। पर तर्कवान बोला भाई ऐसा नहीं होगा, बिकॉज वही वो डायरेक्टर का पॉइंट उसने उठाया। बट कंपनी ने केस फाइल किया, बैंक ने केस फाइल किया, और वो किसके फेवर में लगा? बैंक के ही फेवर में लगा। यहां पे कंपनी का ही नाम आता, बट कंपनी लिक्विडेट हो गया था, इसलिए किसका नाम आ रहा है वहां पे? तर्कवान का। ठीक है, सिंपल। एंड बॉयज एंड गर्ल्स, लास्ट कंसेप्ट ऑफ योर कंपनी क्या है कि डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के एक्सेप्शन क्या है? 3 पॉइंटर है, तीसरा सबसे भारी है। एक बार वापस बोलता हूं, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस किसको फेवर करता है? डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस किसको फेवर करता है? कंपनी। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, अभी उस डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के एक्सेप्शन कर रहे हैं। मतलब घूम फिर के किसको सपोर्ट करेंगे? कंपनी को ही करेगा ना फेवर, उसका एक्सेप्शन मतलब वही रहेगा ना। सर सबसे पहला पॉइंट क्या है शर्मा? अगर आपको नॉलेज है डैश का, किसका? इररेगुलरिटी। अरे आपने उस केस लॉ में अगर उस बैंक को पहले से ही पता था क्या कि वो 2 डायरेक्टर को क्या नहीं है? पावर नहीं है, और उसके बावजूद भी इन लोगों ने क्या पास किया है? लोन पास किया। पता होने के बाद भी तो उसको फेवर करेंगे? अरे बैंक को नहीं करेंगे, तो इसको फेवर करेंगे? कंपनी को। सेकंड क्या लिखा है? सेकंड क्या लिखा है? सस्पिशन ऑफ व्हाट? अरे डायरेक्टर साइन मारने को आया नहीं, उसका प्यून आया साइन मारने को, क्लर्क आया साइन मारने को, तुमको थोड़ा फार तो क्या होना चाहिए? अरे सस्पिशन। तो काय म्हटलं नाही 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 डायरेक्टर नाहीये, मी चालू साइन मारायला, द्या मला कॅश सगळी। तो तुमको डाउट तो आना चाहिए थोड़ा फार। तो ये भी किसको फेवर करेगा? कंपनी को। और लास्ट सबसे बाप पॉइंट है, और क्या लिखा है? फॉर्जरी। अभी आपको फॉर्जरी का मतलब तो पता है, फेक साइन, पता है ना? तो मैं पहले एक सीन क्रिएट करता हूं, फिर आप उसका आंसर दो मुझे। इस केस में, रूबिन के केस में, सुनो मेरी बात जरा। कंपनी के सेक्रेटरी ने, कंपनी के सेक्रेटरी ने शेयर होल्डर के ऊपर जो साइन लगता है, यही साइन इस बंदे ने क्या किया? फॉर्ज किया। किसका फॉर्ज किया सर? डायरेक्टर्स का फॉर्ज किया, और इश्यू कर दिया मिस्टर रूबिन को। रूबिन खुश हो गया, बोला यार क्या शेयर मिल गए मुझे। 2-3 महीने बाद उसको यह समझ में आया कि उसके नाम पे शेयर ही अलॉट नहीं हुए, वो सर्टिफिकेट ही क्या है? फर्जी है। तो मला एक सांगा तुम्ही, अगर मैं एक्सेप्शन कर रहा हूं किसका? डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का, और वो सब किसको फेवर कर रहा है? कंपनी को। तो सर यहां पे तो भाई सबका गलती नहीं है कुछ, ये रूबिन का, ये तो आउटसाइडर है। इस केस में किसको सपोर्ट होना चाहिए? रूबिन को। तो फिर यहां पे कैसे आएंगे? हाँ, ये केस, ये बहुत डीप पॉइंट है।
फॉर्जरी के केस में जब ऐसा सीन हुआ, एक्चुअल में अगर आपने पढ़ेगा ना तो आपको ऐसा समझ में आएगा कि यार सर रूबिन का गलती नहीं है, कुछ क्या किया बेचारे ने। जब ये केस हुआ ना तो कंपनी ने क्या बोला पता है क्या, रूबिन को छोड़ो, पहले हमारे ऊपर भी क्या हुआ है, फॉर्जरी हुआ है। अच्छा कंपनी को कुछ गेन मिला है क्या, पैसा मिला, कुछ नहीं मिला। कंपनी का सेपरेट पर्सन, यस। सो कंपनी क्या बोला है कि भाई मेरे आदमी ने मेरे खिलाफ ही क्या किया है, फॉर्जरी की है। सो ही कुणाच्या फेवरला जाते हैं, कंपनीच्या। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आ सकता है आपको, इट्स वेरी क्लियर कट डायरेक्ट क्वेश्चन कि व्हाट आर द एक्सेप्शंस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। सबसे पहले हैविंग नॉलेज ऑफ द इरेगुलरिटी, सस्पिशन, एंड लास्ट फॉर्जरी। दैट्स द एंड ऑफ योर कंपनीज एक्ट, ठीक है, दैट्स द एंड ऑफ योर कंपनीज एक्ट। शॉर्ट एंड स्वीट, 2 लेक्चर है, दोनों भी है यहाँ पे अपलोडेड, आप आराम से देख सकते हैं, आपका पूरा ये हो जाएगा। कल से 1-2 दिन अपन क्या करेंगे, राइटिंग प्रैक्टिस ऑफ ओनली दिस व्हाट, कंपनीज एक्ट, ठीक है। उसके बाद आई स्टार्ट विद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। टुमारो एवरीबडी हैज टू कम विद अ बुक, आई विल बी शॉर्टलिस्टिंग द क्वेश्चन आंसर्स एंड वी विल बी राइटिंग इट डाउन। There will be direct questions also and case law based questions also on how to write the answer. Thank you.